Assalamu alaikum everyone. I hope you all are doing well. Today I think we have only a few candidates. So without wasting any further time, we are going to start our class because it is on recording. So at least we are going to have a record of our class, even if they are not joining the rest of the students. Even if they are not joining, they will at least have the recording of the class so that they can hear it later and get a little bit of information what we are trying to provide to you guys. It is not much actually, but still something is better than nothing, right? So, Bismillah Rahmani Rahim. How are you all? Okay, very well. So, in the last class, I told you guys to read about parts of speech a little bit. So, have you guys gotten any idea about it? So, because today's class is completely related to the parts of speech and how we are going to include them into our daily life. So, if you have read about it or you have any idea about parts of speech, kindly tell me in the inbox. So, after 2 minutes, I'm going to start explaining my lecture. So, if you have read about parts of speech, kindly let me know. Well, nouns are naming words, and pronouns they replace nouns. Yes, very well, Aisha. Thank you so much for participating. So that was basically this question was basically kickstart toward our class. So let me just explain parts of speech first. Speech is basically something, everything actually that we say. Whatever we are saying from our tongue is called a speech, right? So definitely our speech is not just only about thoughts. It has many words, it has many parts into it. So the different divisions that are done in our speech, our English language, every word that we say has a name. These are called parts of speech. We have eight main parts of speech that are noun, pronoun, verb, adverb, adjective, conjunction, preposition, and article. Sorry, eight. It is not adjective, it is adjectives. So we have at least around eight parts of speech in our English language. Today we are going to study how including parts of speech in our daily spoken is going to help us in uh, improving our vocals, in improving our spoken, and how it can help us represent ourselves as well spoken people. Okay, so the main thing that we are going to talk about today is adjectives. Why? Because noun are added naturally. For example, my name is Shiza, my name is Sadia, my name is Ali, right? These are simple nouns. You do not need practice for that, you do not need vocabulary for that. For some things you do need. For example, there are some names of some different food items. For them you need to know the nouns, the names of them, but mostly they come out naturally. Same is the case with pronouns. We have pronouns I, we, you, they, he, she, it, right? These are the seven pronouns that we have. There are three types of pronouns: subjective, possessive, and objective. For example, I, my, me. Here, I is the subjective, my is the possessive, and me is objective part. So there are actually, we can say, 21 pronouns do we have that we put into our English language according to the use of them. Third, we have verb. Anything that is being done is called a verb. Then we have adverb. The quality of verb. For example, he runs slowly, he runs fast. These are called adverbs. Why we are going to talk about adjectives? Because in our daily life, if we look at it, we encounter people, we encounter situations, we encounter circumstances, we encounter environment rather than encountering simple work that is being done. What we encounter in our spoken are mainly people, and to talk to people we need to know about the qualities of them, either good or bad. To have a know-how of the environment, of the circumstances, we need to know how to call that situation.
हम अगर किसी इंसान से बात कर रहे हैं, हमें पता होना चाहिए कि हमने उसके लिए कौन सा लफ्ज इस्तेमाल करना है। पहली क्लासेस में मैंने शायद एग्जांपल दी होगी टेरिबल और टेरिफिक की। सो इट इज काइंड ऑफ सेम। यू कैन नॉट से अ पर्सन दैट यू आर अ टेरिबल पर्सन, इट इज नॉट अ कॉम्प्लीमेंट। ओके, ये तो बड़ा उसके लिए आप नेगेटिव रिमार्क दे देंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा एडजेक्टिव पॉजिटिव में जाता है, कौन सा एडजेक्टिव नेगेटिव में जाता है। और कुछ क्वालिटीज आजकल हमारी अवाम में बहुत ज्यादा है कि हम लोग, हमें नहीं पता होता है एडजेक्टिव हमने किस तरह से यूज करना है। ठीक है, आज हम ये पढ़ेंगे कि हमने किसकी कितनी तारीफ करनी है एक्चुअली। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द क्लास विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम। डिस्क्राइबिंग पीपल, फर्स्ट ऑफ all that we are going to do with the use of adjective. How we are going to describe people? Use adjectives for appearances and personality. Examples: Sarah is cheerful with long black hair. Here in this simple sentence, we have three adjectives. First one, Sarah is cheerful. Cheerful is the quality of Sarah. Okay, adjective is basically the quality of noun. वो नाउन कोई भी हो सकता है, वो नाउन मौसम हो सकता है, वो नाउन इंसान हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। सारा इज अ नाउन, सारा इज चीयरफुल, चीयरफुल इज एडजेक्टिव with long black hair. Now hair is noun, long, black, these are the qualities here, right? Long is the quality, black is also a noun, but if we look at it, here it has been used as a quality. It can be brown, it can be blonde, it can be red, it can be short, it can be bob cut, but she has long black hair. To specify the situation, to specify the appearance, to specify the personality, okay, we are going to use adjective. It is very important. Now he is taller than his brother. Now there is going to be a very detailed instruction about how to use adjective. For example, we have used taller than his brother. Now why taller, why not tall? So we are going to talk about the degrees of adjective as well. Kindly note them down so you know that when to use what adjective and what word should be put along with the adjective to make the sentence proper and accurate. Now, if we look at these two sentences, in the first sentence, we have talked about the characteristics of Sarah simply. But in the second sentence, if we look at it, there are two characters. First one is he, and the other one is his brother, right? We have a boy, we have his brother. There is a quality, tall. Okay. Now, the quality has been used in the comparison. For example, he is taller than his brother. There are two characters, there is one quality, and that is used for the comparison. This is an adjective. Let's just talk about what kind of adjective is it. Okay, what is the degree of adjective that we have used over here? So describing places. Second, how to describe a place? Use sensory adjectives. Sensory adjectives, सेंसरी एडजेक्टिव्स अब वो होते हैं, या इमेजिनरी एडजेक्टिव्स भी इन्हें कहते हैं हम, कि जब आप वो लफ्ज बोलते हैं ना, हमारे जहन में फौरन से एक पिक्चर बन जाती है। फॉर एग्जाम्पल, मैं बोलती हूँ क्राउडेड, आपके जहन में फौरन एक पिंच पे एक पिक्चर बनी होगी। ठीक है, जिसमें आपने इमेजिन कर लिया होगा कि क्राउडेड सिचुएशन कैसी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से देयर वर अ लॉट ऑफ पीपल ओवर देयर, राइट? सो इफ वी से देयर वर अ लॉट ऑफ पीपल, मे बी दैट वाज नॉट क्राउडेड। क्राउडेड वहां पे यूज होता है जहां पे बहुत ज्यादा क्राउड और वो सफोकेटिंग हो। ठीक है, कि फॉर एग्जाम्पल कॉन्सर्ट्स पे होता है, या आप देखिए आजकल जिस तरह मुहर्रम है, तो आप देख रहे होंगे रोड्स बहुत ज्यादा क्राउडेड है। क्राउडेड का मतलब ये है कि इतने ज्यादा लोग मौजूद। I'm sorry I lost the connection for a while. Just give me a moment so I can restore it, okay? Can you guys hear me properly now?
Excuse me, can you guys hear me? Okay, I want to say one thing, that if I am, for example, lost even for a second, kindly inform me instantly in the message section, okay? So until I open the slides, let's just continue the lecture without the slide for a moment. So we were talking about the comparison, and then we were talking about the scenery, right? So sensory are those that instantly pinch और टच आवर सेंसेस, ओके। जैसे ही हम उनके बारे में बात करते हैं या हम वो वाले वर्ड्स यूज करते हैं, हमारे दिमाग में ऑटोमेटिकली एक पिक्चर बन जाती है। सो दिस इज व्हाट वी कॉल सेंसरी एडजेक्टिव्स, ओके। अब सेंसरी एडजेक्टिव्स कैसे इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत ज्यादा वही बात आती है कि देखिए, स्पोकन में एक इंसान वही, जिसे कहते हैं ना, एक्सेल करता है, जिसे बहुत बड़ी बात बहुत छोटे लफ्जों में कहनी आती हो। आपको एक दो पैराग्राफ्स की बात अगर एक लफ्ज में समझानी आ गई है, तो इट मीन्स दैट यू गाइज आर गुड इनफ इन वोकेबलरी, यू गाइज आर गुड इनफ इन स्पोकन, एंड यू हैव डेवलप्ड योर ब्रेन अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द लैंग्वेज। आपको अपना दिमाग जो है ना, वो लैंग्वेज की नीड के मुताबिक डेवलप करना है, ठीक है। तो ये चीजें आपको इस वजह से बताई जा रही हैं, ताकि आपको पता हो कि हमने एक बहुत बड़ी बात को एक छोटी सी बात पे कैसे करना है कवर। अब ये जो सेंसरी एडजेक्टिव्स हम यूज करते हैं, हम इसी वजह से करते हैं ताकि हमें बहुत लंबा पैराग्राफ ना करना पड़े, हम कंसाइज रहें। रिटर्न में हमारे पास बहुत टाइम होता है और बहुत क्रिएटिव लिबर्टी भी होती है। अगर हम स्पोकन की बात करें, ये इंस्टेंटली हमें आंसर करना पड़ता है। कोई सिचुएशन हमारे सामने आ रही है, कोई हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है, वी हैव टू आंसर इंस्टेंटली। वी डू नॉट हैव इनफ टाइम टू थिंक अबाउट इट और टू पॉन्डर अबाउट द आइडियाज इन डिफरेंट वर्ड्स which we can use in that. We have to give the answer in spur of the moment. आपको उसी 2-3 सेकंड्स के अंदर उसका आंसर करना है। तो आपको किस तरह से आंसर करना है, आपको प्रिसाइज करना है, आपको ब्रीफ रहना है। So next thing we have is describing things. Describe by size, color, material. Example, a small blue leather wallet. Okay. So here we are going to see how we can use these things. Okay. So a small blue leather wallet. For example, we could have simply said, have you seen a wallet? Every person has a wallet. I have a wallet. You have a wallet. मुझे लगता है हम लोग अपने जो कुछ चीजें जिनके बगैर हम बाहर नहीं निकलते, उसमें मोबाइल के बाद हमारे पास वॉलेट ही आता है। आप आगे कहते हैं, डू यू हैव यू सीन अ वॉलेट? द नेक्स्ट पर्सन इज गोइंग टू से, डेफिनेटली यस, आई हैव सीन अ वॉलेट, आई हैव वन। So you have to be specific if you want to find something. Okay, so describing the color, describing the size, describing the material. It is not just going to tell about the fluency of your language, it is also going to tell about your noticing skills, about your observation skills. पता लगता है कि ये इंसान बहुत कीन है अपने मामलात में, ये देखने में, सुनने में, समझने में, बोलने में बहुत ज्यादा कीन है, बहुत अच्छा ऑब्जर्वेंट है ये इंसान। हमें उधर से ही पता लग जाता है, ठीक है, जैसे ही हम बात करते हैं उनके बारे में विद ऑल द डिटेल्स। अब हम एडजेक्टिव के बारे में बात कर रहे थे कि एडजेक्टिव्स की ना कुछ डिग्रीज होती हैं। एक हमारे पास सिंपल एडजेक्टिव आता है, फॉर एग्जांपल शी इज टॉल, ही इज ब्यूटीफुल, ओके। So these are the words which we use simply when we have to tell about the quality of a person. She has black hair. Okay, this is simply a quality. But if we have to talk about the comparison, हमें दो चीजों में कंपैरिजन करना है, तो हम यूज करते हैं कंपैरेटिव डिग्री। फॉर एग्जांपल, ही इज टॉलर देन हिज ब्रदर। हमने पीछे एग्जांपल दी थी। अब कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनमें हम एंड पे ईआर नहीं लगा सकते। फॉर एग्जांपल, रोज इज ब्यूटीफुलर देन एनी अदर फ्लावर, हम नहीं कह सकते। ब्यूटीफुलर इज नॉट अ वर्ड, इंटरेस्टिंगर इज नॉट अ वर्ड। So for such things we are going to add more interesting or more beautiful. Okay. Anime is more interesting than Bollywood, I can say. Okay. So this is a comparison. We have used more and simple word. Or we can say he is taller than the brother. This room is cleaner than the other room. This is called comparative degree. अब सुपरलेटिव डिग्री ध्यान से सुनिएगा, इसमें क्या होता है कि जब हमने एक ही चीज को बहुत ज्यादा एग्जैजरेट करना हो। फॉर एग्जाम्पल, हमारी क्लास में अगर 40 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, उनमें एक जो एवरेज हाइट है सब स्टूडेंट्स की, वो हमारे पास आ जाती है 5'4", 5'5", 5'6". अब एक स्टूडेंट आता है हमारे पास कोई 6 फीट का, या 6 फीट की कोई स्टूडेंट आ जाती है, तो हम किस तरह कहेंगे? हम कहेंगे शी इज द टॉलेस्ट इन द क्लास। वी आर नॉट गोइंग टू से शी इज टॉलर देन आयशा, शी एंड ईमान, रिमशा, निमरा। इस तरह हम एक एक के नाम लेंगे, हम तो शाम तक 40 स्टूडेंट्स के नाम भी लेते रहेंगे।
तो जस्ट टू टेल ऑल इन वन वी हैव टू से शी इज द टॉलेस्ट, सबके साथ कंपैरिजन कर दिया है। और सुपरलेटिव डिग्री में दी हमेशा यूज करते हैं, वी हैव टू टेल दी बिफोर दैट। ओके, क्यों? क्योंकि हम उसको स्पेसिफिक कर रहे हैं ना, दी यूज होता है, THE दी होता है ये, ठीक है, दा नहीं लगाते होते, किसी को भी नहीं लगाते और इंग्लिश में भी नहीं लगाते, दा इज नथिंग, या द होता है या दी होता है, ठीक है। तो दी टॉलेस्ट, ही इज दी टॉलेस्ट इन द क्लास, हमने एक एक का नाम नहीं लेना है, हमने उसको स्पेसिफाई किया है कि सिर्फ फॉर एग्जाम्पल अली है, तो हमने अली की बात करनी है, अली इज दी टॉलेस्ट इन द क्लास, अब सिर्फ अली की बात हो रही है। ओके, तो दी लगाना जरूरी है, और इसमें सुपरलेटिव में हम एंड पे EST ऐड करते हैं, जिस तरह कंपैरेटिव में हम ER ऐड करते थे। अब कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं अगेन जिनके हम एंड पे EST नहीं ऐड कर सकते, इंटरेस्टिंग गेस्ट नहीं होता, ब्यूटीफुलेस्ट नहीं होता, ब्यूटीफुल होता है। ओके, सो फॉर दीज वर्ड्स वी आर गोइंग टू ऐड दी मोस्ट। ओके, रोज इज दी मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर इन द वर्ल्ड, और शी इज दी मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट इन द क्लास, शी इज दी मोस्ट। अब कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल कीनेस्ट है, अब अगर हम जिस तरह टॉल आ जाता है तो हम कहते हैं शी इज द टॉलेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास। अब अगर हमने टॉलेस्ट लगा दिए, ऑलरेडी EST आ रहा है, उसके साथ मोस्ट लगाने की मेहरबानी नहीं करनी है, हमने इतने मेहरबान नहीं होना है अगले शख्स पे। ही इज द मोस्ट टॉलेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास, मोस्ट भी लगा दिया, टॉलेस्ट भी लगा दिया, ये तो कुड प्लीज से भी आगे की गेम हो गई है, कुड यू प्लीज गिव मी वाटर, ये उससे भी आगे की गेम हो गई है। दी मोस्ट टॉलेस्ट नहीं आएगा, दी मोस्ट टॉल आएगा या दी टॉलेस्ट आएगा, ठीक है, द मोस्ट ब्यूटीफुल आएगा, द मोस्ट ब्यूटीफुलेस्ट आ ही नहीं सकता है। एग्जाम्पल, दिस बीच इज क्लीनर देन द वन, देन दैट वन, अब इसमें हमने कंपैरिजन कर दिया तो हमने क्लीनर लगा दिया, इसके साथ दी नहीं लगाएंगे। अब अगर हम सुपरलेटिव की बात करें तो हम कह देते हैं कि फॉर एग्जाम्पल कराची जू इज द मोस्ट डेवलप्ड वन इन पाकिस्तान, हम इस तरह से कहते थे, दी मोस्ट हमने लगा दिया है, उसके साथ हमें ये सारा कुछ लगाने की जरूरत नहीं है, हमें ER लगाने की, EST वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है। सुपरलेटिव और कंपैरेटिव की आप लोगों को समझ आ गई है? अब ये चीजें क्यों जरूरी हैं? ओके, सो अराउंड 8 to 9 months ago I went for an interview at a place. So that was quite an interesting interview. Why? Because when I entered into the room, they asked me, introduce yourself. I introduced, and the interviewer, she interrupted me in between and said, have you ever visited any northern area? I said, yes, obviously everyone has. So she said, tell me, what was the experience? उसने मुझसे डायरेक्टली पूछ लिया, उसने कहा मुझे अपना एक्सपीरियंस बताएं, आपका कैसा था वहां पे। अब मैं उसे बताती हूँ कि आई सॉ माउंटेन्स, आई सॉ स्ट्रीम्स, आई सॉ ग्रास, आई सॉ स्नो, मैं ऐसे कर कर आके आ जाती हूँ, ठीक है। अब इसमें खासियत क्या है? ठीक है, ग्रीनरी तो मैं यहाँ पे भी, ट्रीज तो मैं यहाँ पे भी देख रही हूँ, ठीक है, माउंटेन्स मुझे इस्लामाबाद में भी नजर आ जाएंगे, स्ट्रीम्स मुझे यहाँ पे लाहौर में केनाल रोड के साथ मुझे थोड़ी सी केनाल चल रही है, वो भी मुझे स्ट्रीम नजर आ जाएगी अगर कहीं जाए तो। अब आपने डिस्क्राइब किस तरह से करना होता है, यही बात आती है डिस्क्रिप्शन, आपकी जो स्पोकन है ना, आपकी जो फ्लुएंसी है, वो यहीं से पता लगती है कि आप एक सिचुएशन को कितने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। आपने बताना है, आपने वही सेंसरी एडजेक्टिव्स यूज करने हैं, आपने अगले बंदे के दिमाग में एक पिक्चर बनानी है कि जी मैं जहां से होके आई हूँ ना, उसकी तरह की जगह ही कोई नहीं है, ठीक है। सवात हर साल सारे जाते हैं, मरी भी जाते हैं, माल रोड अब लाहौर का अनारकली बन गया हुआ है, ठीक है, सारे वहां पे हर साल जाते हैं। हाउ यू आर गोइंग टू मेक इट डिफरेंट इज व्हाट दैट मैटर्स। आप उसको किस तरह से अलग बनाते हैं, आपकी स्पेसिफिकेशन पे डिपेंड करता है, आपकी क्वालिटी पे डिपेंड करता है, ठीक है। कोई चीज भी खूबसूरत या कोई चीज भी स्पेशल नहीं होती, इट इज यू दैट मेक्स इट ब्यूटीफुल। ब्यूटी इज इन द आई ऑफ बिहोल्डर, so when it is in the eye of beholder, it is in the tongue of the beholder as well. Okay, so you have to make it beautiful. कुछ चीजें ऐसी होती हैं, कभी कभार हमारे सामने इंटरव्यू में वो एक ग्लास रख देते हैं और कहते हैं डिस्क्राइब इट, इसको इस तरह से, वो जिस तरह आपने अक्सर देखा होगा इंटरनेट पे, वो कह रहे होते हैं कि सेल मी अ पेन। अब वहां पे क्या देखा जाता है? वहां पे ये देखा जाता है कि आप उस पेन को किस तरह से इस तरह का बनाते हैं। मैं आप उसको बना देंगे शाकाला का बुम बुम वाला पेन है, आप इसके साथ क्लाउड्स ड्रॉ करेंगे ना, आपके हाथ में क्लाउड्स आ जाएंगे। इट इज अप टू यू हाउ यू आर गोइंग टू एक्सप्लेन दैट। ओके, आपकी डिस्क्रिप्शन पे डिपेंड करता है। अब डिस्क्रिप्शन अगर आप नोट करें सारी की सारी, इट इज ऑल अबाउट एक्सप्लेनिंग द क्वालिटी ऑफ दैट थिंग।
quality can be good, quality can be bad. It depends on the quality, right? तो आपकी जो क्वालिटी है वो क्या है? एडजेक्टिव. That's why adjectives are important. You have to describe your favorite place, you have to describe a person's appearance or personality, you have to compare two places or people, you have to share the ideas with the class. This is basically an activity, but I'm explaining it to you. For example, if you have to do all these things, what matters the most is adjectives, the quality, how you are going to explain that. Okay, so this is our activity as well for today. You have to record yourself talking about your favorite place, talking about your favorite person, talking about two different places. For example, I went to Sawad, but I liked Kashmir more, right? So why did I like Kashmir more? I have to explain it. And how I can explain it to the other person? By using adjectives, by using the quality. ठीक है. अब हम अगर अपने फर्स्ट क्लास से देखें ना, यहाँ तक सबसे पहले हमने मीट एंड ग्रीट पे बात की थी कि हमने किसी से मिलना कैसे है. मिल लिया तो उसे सलाम दुआ दुआ कैसे करनी है वो भी कर लिया. उसके बाद उसे क्वेश्चनिंग कैसे करनी है, क्वेश्चन भी कर लिया. उसके बाद उसे आंसर कैसे करना है, आंसर भी कर लिया. अब हम डेवलप कर रहे हैं अपनी पर्सनल स्किल्स. अब हम अपनी पर्सनैलिटी ग्रूमिंग कर रहे हैं. कैसे? हम बोलना सीख रहे हैं, कब क्या बात करनी है. वही पहले दिन वाली बात आ गई कि जब मैंने कहा था कि कोई बंदा ऐसा होता है कि हम देख के कहते हैं कि बड़ा जबरदस्त इंसान है, until or unless they open their mouth, right? आप अपना मुंह खोलने से पहले अगर बेहतर लग रहे हैं और बाद में नहीं लग रहे, तो इट मीन्स दैट यू हैव अचीव्ड नथिंग इन योर लाइफ. सो टू अचीव दैट, वो जो एक शेर है, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते परवाज मगर रखती है. तो आप इस तरह से अपने लफ्जों को पिरोना है, आपने आपने अपने वर्ड्स के साथ खेलना है. अपने वर्ड्स को आपने वर्ड्स को एक्सप्लोर करें, उनके आप उनको ढूंढे. ठीक है, आप किसी सिचुएशन को किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे. अब ये जो एक्टिविटी है फेवरेट प्लेस पर्सन, आप किसी भी एक्टिविटी को एक्सप्लेन करें. अब हमारे टीचर्स ने हमें कैसे प्रैक्टिस करवाई थी? दे आस्क्ड अस अबाउट द मोस्ट हैप्पी मोमेंट और द सैडेस्ट मोमेंट ऑफ आवर लाइफ. Okay, they asked about these two things. Now it was up to us how we are going to tell about the happiest moment and how we are going to tell about the saddest moment. अब इन दोनों से देखिए हमारी पर्सनल एफिलिएशन होती है, हैप्पी मोमेंट से भी सैड मोमेंट से भी. इन दोनों से हमारी पर्सनल एफिलिएशन होती है, इमोशनल अफेक्शन होती है या इमोशनल एफिलिएशन होती है. ठीक है, और जहां पे हमारे इमोशंस आते हैं, हमें अब इस एक्टिविटी से पता लगता है कि हमने अपने इमोशंस कैसे एक्सप्रेस करने हैं. This is your activity for today's task. For today, this is your today's task. You have to record yourself at least 1 minute of your voice note, and you have to record the most emotional moment of your life. Okay. Next, write a short paragraph. Describe a favorite room, person, or gift. Use at least 5 adjectives and one comparison. Okay. This is how you are going to write it. अगर आप write करना लिखना चाह रहे हैं तो इस तरह से उसमें एक sentences लिखें, फिर उसके अंदर हाईलाइट करें कि आपने कौन से एडजेक्टिव इस्तेमाल किए हैं. फिर आपको खुद ही पता लगेगा कि आपकी वोकैबुलरी किस स्टैंडर्ड की है. नेक्स्ट इज, अब क्या, हाउ दिस हेल्प्स इन स्पोकन इंग्लिश. ठीक है, ये एक्टिविटी ये हम स्लाइड शुरू में ऐड करते होते हैं, आज हम यहाँ पे ऐड करें. इम्प्रूव्स योर एबिलिटी टू डिस्क्राइब आइडियाज क्लियरली. जिस तरह हमने बात की है, आपके जहन में जो भी आइडिया होता है, इट इज रेनी सीजन, इट इज क्राउडेड ओवर देयर. ठीक है, अब मैं कहती हूँ देयर वर अ लॉट ऑफ पीपल, मे बी द पीपल वर पीसफुल. हाउ इट इज गोइंग टू डिस्क्राइब द सिचुएशन? द प्लेस वाज क्राउडेड. ओके, सो क्राउडेड से हमें पता लग रहा है कि बहुत सारे लोग थे और वो सफोकेटिंग भी थे. देयर वर अ लॉट ऑफ पीपल, देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल यूजुअली इन द पार्क्स, देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल यूजुअली ऑन द रोड, but not most all the time it is crowded. Okay, sometimes it is peaceful, sometimes it is disciplined. So you need to know how you need to describe the idea clearly, properly, कि अगले बंदे को पता लगे. Builds vocabulary for daily conversation. Spoken is all about vocabulary. आपकी जितनी vocabulary developed होगी, उतनी ज्यादा आपकी spoken improve करेगी. Make stories and examples more interesting. ऑब्वियसली जितना ज्यादा आप उसके अंदर ऐड करेंगे, जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा. जितने अच्छे वर्ड्स यूज करेंगे उतनी खूबसूरत स्टोरी बनेगी. हेल्प्स इन इंटरव्यूज एंड सोशल सेटिंग्स. डेफिनेटली आपकी इम्प्रूवमेंट होगी, आपको हेल्प करेंगे इंटरव्यूज में, आपके सोसाइटी में. आप एक कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं किसी इंसान के साथ, आप किसी ग्रुप में बैठ के बात कर सकते हैं अगर आपकी वोकैबुलरी आती होगी आपको. ठीक है, आपको पता होगा कि किस सिचुएशन की बात हो रही है. इंक्रीजेस फ्लुएंसी बाय गिविंग यू मोर टू से. डेफिनेटली the more you have, the more you are gonna project, right? So जितना ज्यादा आपके पास है, आप उतना ज्यादा ही कह सकते हैं. इतना वो जखीरा बना ले अपने पास लफ्जों का कि आपके पास कभी कमी ना हो कहने की. दिस इज हाउ एडजेक्टिव्स आर गोइंग टू असिस्ट यू. अगर हम पूरी अपने पार्ट्स ऑफ स्पीच में देखें ना, मैंने आपसे कहा था कि पढ़ के आइएगा,
नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, कंजंक्शन है, प्रेपोजिशन है, आर्टिकल है। preposition भी आ जाते हैं. The book is on the table. Okay, the book is under the table. He is in the chair. He is on the table. Right? आ जाते हैं हमें. preposition भी आ जाते हैं. आर्टिकल है. आर्टिकल हमारे टीचर्स कहते थे जब आप कोई ऐसे लिखे ना, उसके बाद एंड पे ऊपर स्प्रिंकल करें आर्टिकल, जिस तरह चेरी ऑन टॉप, आप स्प्रिंकल ऑन केक, टॉप ऑफ द केक आप करते हैं ना, उस तरह से दी और ए को स्प्रिंकल करें अपने एसे के अंदर. दोबारा ऐसे पढ़े, जहां पे लग रहा है दी आना चाहिए लगा दे, जहां पे लग रहा है ए आना चाहिए लगा दे, ऐसे के एंड पे. मेन चीज, आपको कोई क्रिटिकल एनालिसिस आता है, आपको कोई वो कहते हैं कि ये आपके पास पोइट्री है, आप इसका क्रिटिकल एनालिसिस करें जी, या हम ऐसी एक्टिविटी रख लेते हैं, आज मैं आपको एक पोएम सेंड कर दूंगी, आप लोगों को उसका क्रिटिकल एनालिसिस जो आपको उसको पढ़ के लगेगा, आपने बोल के वो मुझे बता देना है. उसके अंदर एडजेक्टिव्स होंगे, आप उनको हाईलाइट करें और मुझे बताएं कि इस एडजेक्टिव ने स्पेसिफिकली किस तरह से यहाँ पे हेल्प की है. ठीक है, ये हम एक्टिविटी रख लेते हैं. दिस इज क्वाइट एन इंटरेस्टिंग एक्टिविटी. आई विल बी सेंडिंग अ पोएम इन योर ग्रुप and you have to highlight the adjectives that are being used in that poem and you have to tell me what did you understand after reading this poem. Okay, so this is how you are going to increase your critical analysis as well. आपकी observation increase होगी, आपका critical analysis increase होगा. जितने ज्यादा आप critical होंगे, आपका brain उतना ज्यादा develop करेगा, आपकी conversations उतनी ज्यादा mature होंगी. So, for example, practical spoken examples, introducing a friend. He's very kind and taller than me. Sharing travel experiences. That city was noisier but more colorful. Describing object, it is a tiny silver pendant, lighter than paper. Helps you sound natural and confident. Definitely. So this was the end of our class. If there are any questions, we have 3 minutes 45 seconds left. Kindly ask the question. Sometimes I just sit here confused if you guys can hear me properly or not. Why? Because whenever I ask a question, there is a dead silence in the class. And I definitely don't like it. After like 6 sessions, I clearly don't like it. Okay, so no questions. So we are going to end this class right now. I'm going to post the assignment in the group. Kindly do your homework. It is up to you if you want to learn. If you do not want to learn, skip the class, skip the homework. There is no bound to this. We are not going to take your exams properly. Like, you do not have to go into the exam hall and do your preparation before that. It is completely up to you. So best of luck for the rest of the classes. We have taken around 6 classes till now, and now we have only 9 classes left. Out of them, 3 are going to be practice classes, which I'm going to take the presentations of you, and the rest of the classes are the lessons that we have to do till the end. So best of luck for the remaining classes. See you in the next class. Hopefully, inshallah, I'll be posting the assignment in the group. Take care. Allah Hafiz. Allah Hafiz. Allah Hafiz.